آپ نے نام سنا ہوگا کئی مرتبہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بڑا عظیم نام ہے، یہ سب ناموں میں سے اعلیٰ نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کا زمانہ جاہلیت میں کوئی نام تھا حضرت عبداللہ، وہ مکے کے اندر ہیں، ان کے دل میں اللہ نے اپنے نبی کی محبت کو پیدا کر دیا۔ باپ فوت ہو چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، اپنے چچے کی کفالت میں ہیں، اور یہ وہی بات ہے جے لگ جاؤں تے بجائیاں نہیں جاندیاں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، وہ اس کو چھپا رہے تھے، چاچا ظالم تھا، مارتا تھا، لیکن وہ عشق کدھر چھپ سکتا ہے۔ تو چچے کو پتہ چل گیا کہ یہ اپنے دین سے پھر چکا ہے، اس نے بڑا مارا، بڑا پیٹا، لیکن یہ باز نہ آئے۔ آخر چچا اتنے غصے میں آیا، اس نے کہا میرا جو کچھ تیرے پاس ہے میں وہ سارا لے لوں گا۔ اس نے کہا لے لے۔ اس نے کہا یہ جو اس وقت تو نے کپڑے پہنے ہیں یہ بھی میرے ہیں، یہ کپڑے میرے واپس کر۔ کپڑے اس نے لے لیے، جناب ننگا ہو گیا، عشق نے آگاں بجائیاں نہیں جانیاں، کپڑے لے لیے اور اپنے ماں کے پاس آئے تو ماں نے حالت دیکھی، یہ کیا؟ دور سے ایک چادر کمبل پھینکا اور انہوں نے اس کمبل کے دو ایسے کیے، ایک کے ساتھ اپنے سطر کو چھپایا، ایک اوپر رکھا، پھر کہا بس اب میرے دل میں جس کی محبت پیدا ہو چکی ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، بن دیکھے محبت ہو گئی ہے، سنا ہے وہ مدینے چلے گئے، پر مدینے کا سفر شروع ہو گیا۔ اکیلا بندہ ہے، نہ کوئی کھانے کو ہے، نہ کوئی پینے کو ہے، نہ جوتیاں ہیں، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ کوئی رفیق ہے سفر میں، وہ سفر جاری ہے، منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ آخر کار چونکہ عشق تھا وہ اس منزل پہ پہنچ گئے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، اور پھر وہ جس کا عشق ہے وہ ایسے غریب نواز ہے، وہ کس طرح نوازتے ہیں۔ جب وہاں یہ پہنچ گئے، مسجد نبی کے باہر بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا، پوچھا کون؟ انہوں نے زمانہ جاہلیت والا کوئی اپنا نام بتایا، کوئی بت والا کوئی نام تھا، کہا نہیں تم وہ نہیں ہو، تم عبداللہ ہو، تم عبداللہ ہو۔ اور پھر وہ اس مدرسے کے اندر شامل ہو گئے جس کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، اس مدرسے میں وہ شامل ہو گئے، وہاں رہنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، قرآن کریم یاد کرنا شروع کر دیا۔ ایک مقام پر ایک دن وہ اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ذرا تھوڑا سختی سے روکا کہ ایسا پڑھا کرو۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا اے عمر ان کو نہیں روکنا، یہ چاہے اونچی آواز سے پڑھے چاہے یہ آہستہ پڑھے، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس نے ہمارے لیے بہت مصائب کو برداشت کیا ہے۔ اور پھر وہاں رہنے لگے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے بھی شہادت چاہیے، میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں، شہادت کا جذبہ رکھنا چاہیے، شہادت کا خیال رکھنا چاہیے، دل میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ ویسے ہے تو مشکل ہے، حلوہ کھا کر کے شہادت ہوتی ہے، وہ تو بڑے عظیم لوگ تھے۔ تو بات یہ ہے، حضور نے فرمایا لشکر جا رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کو بخار ہے، آپ کو بخار ہے، پانی میں مجھے شہادت چاہیے۔ پھر حضور سرور کائنات نے ایک تعویذ بھی ان کو دیا جو بازوں کے ساتھ باندھنے کو حکم دیا، اور راستے میں گئے، راستے میں ان کا وصال ہو، راستے میں چونکہ شہادت کے ارادے سے چل پڑے تھے، نیت کو دیکھا جاتا ہے، راستے میں فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے، اور فوت ہو گئے۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ تو فوت ہو گئے، اب وہیں پہ قافلہ رکا اور ان کے غسل کا اہتمام کیا گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، قبر تیار کی گئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد رات کا وقت تھا اور حضور خود سرور کائنات ان کی قبر پر کھڑے ہیں، چراغ آپ پکڑ کر، اور قبر میں کون اتار رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور حیدر کرار ہیں، یہ دونوں حضرات ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور ان کو بار بار ان کو
फरमा रहे हैं अपने भाई का ख्याल करना, इसको कहीं दफनाने में तकलीफ ना हो, आराम से इसको कब्र में रखना। फिर हुजूर खुद कब्र में उतरे और आपने उसको सीधा किया और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी से पसीना मुबारक भी आ, एक कतरा उसके चेहरे पर भी गिरा। कौन वो कौन था, कौन उसको जानता था, कौन था? लेकिन जब हुजूर का इश्क उसके दिल में पैदा हुआ, ईमान की दौलत से माला माल हो गया और फिर उसको ये मकाम और मर्तबा मिला, बड़े बड़े इस मनसब को उस दिन हजरत उमर के ये अल्फाज मुझे याद आ गए। हजरत उमर कहने लगे काश आज मेरा जनाजा हो, आज मेरे लिए हुजूर इतनी मेहरबानी। आखिर में हुजूर ने ये भी फरमाया, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज की अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह अब्दुल्ला से मैं राजी हूँ, मैं अब्दुल्ला पर खुश हूँ, मेरे हक तुम अब्दुल्ला से राजी हो, तो मैं अब्दुल्ला से राजी हो जा। जब ये दुआ साहबा ने सुनी, हजरत उमर से रहा ना गया, तो कहने लगे काश आज मैं मर जाता, आज मैं मर जाता, आज मेरा जनाजा हुजूर पढ़ाते और मुझे हुजूर अपने सामने कब्र में, मुझे उनके सामने मुझे कब्र में उतारा जाता और आज इस दुआ का मैं मुस्तहिक होता। अल्लाह अकबर। कौन थे, कहां से कहां पहुंच गए? तो एक और वाकया, फिर अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? अल्लाह अकबर। बाप के अकलौते बेटे थे। इख्तिसार के साथ में बात करूंगा, बस लंबी बात नहीं। बाप उनका आतश परस्त था, हर वक्त आग जलानी थी, उनकी ड्यूटी भी ये थी कि बस आग। लेकिन वही कहा, जिसके दिल में अल्लाह ईमान का चिराग रोशन कर दे, हुजूर की मोहब्बत दिल में डाल दे, वो तकलीफों तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसको उस तकलीफों में भी बड़ा मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। तो उनकी वो तबीयत नहीं मानती थी, वो कहीं बाहर चले जाते थे, देखते थे, तलाश में थे कि मुझे कोई मिल जाए, कोई मुझे रहनुमा मिल जाए। ये आग, ये ड्यूटी मुझसे नहीं हो सकती कि हर रोज मैं आग जलाऊं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। तो आखिर एक कोई राहिब था, उसके पास चले गए। वो अपने तरीके से कर रहा था इबादत, कहा ये चलो उससे तो बेहतर है ना, उससे, उस आग से तो ये कुछ बेहतर है, और पूछ रहे हैं कि मेरी कोई रहनुमाई करो। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि सुना है कि अल्लाह के आखिरी नबी वो तशरीफ ला चुके हैं, तुम वहां किसी जरिए उन तक पहुंचो, कोई काफिला जा रहा है, उन तक पहुंचो तो वो तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। जब ये बात सुनी तो और दिल थोड़ा सा उसमें उम्मीद आ गई। अब चल पड़े और मुख्तलिफ तकलीफें बर्दाश्त की, मुख्तलिफ लोगों के हाथों बिकते गए, गुलाम बन गए। आखिरकार मदीने में पहुंचकर एक बंदे ने उनको खरीद लिया, गुलाम बना दिया और सिर्फ ड्यूटी सौंपते, ये काम करना है, ये बागों को पानी लगाना है, खजूरें इनका ख्याल करना है, सारा काम करना है। तो वो ड्यूटी में लगे रहे, लेकिन अपनी मंजिल की तलाश में भी रहे। ये नहीं है कि जो यहाँ पढ़ने के लिए आए फॉर्म में अपना नाम दाखिल करवाए, लिखे मैं तालिब इल्म हूं, मैंने पढ़ना है, महीने के बाद उसको हम तलाश करें वो किधर है। कोई कहेगा जी वो गुजरांवाले चला गया है, कोई कहता है कोई वो जी उधर फलां जगह चला गया है। नाम इधर दाखिल है, नाम तालिब इल्म है, लेकिन वो तालब किसी और चीज का बन गया है। ये नहीं है। हज़रत सुलेमान उनकी तलब कुछ और थी, गुलामी भी की, मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन मंजिल उनकी कुछ और थी, तलाश कुछ और थी, उस मंजिल की तलाश में थे। तो आखिर वो जिसकी ड्यूटी कर रहे थे, तो वो दरख्त के नीचे बाग में बैठे हुए थे, उन्होंने आपस में वो गुफ्तगू कर रहे थे कि सुना जी वो आखिरी नबी जिनको कहा जाता वो आ गए। इतने वो खुश हुए हज़रत सलमान फारसी, उन्होंने खुशी के आलम में दरख्त के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी, खुशी में। पहली वो ये इश्क ने आगा एवं नहीं लाइया जानिया, जे लग जावन ते बुझाइया, फिर सामने आग है, नारे नमरूद है, यानी अकल मना कर रही है, इश्क कह रहा है नहीं छलांग लगा दे कुछ नहीं होगा, जाने या अली। इश्क और चीज, इश्क और चीज है। तो बहरहाल उस शख्स ने उनको बताया था कि उनकी 3 निशानियां हैं। पहली निशानी ये है कि वो सदका नहीं कबूल करते, सदका नहीं खाते। दूसरी निशानी ये है कि वो हदिया कबूल कर लेते हैं। तीसरी निशानी ये है कि उनके पीछे कांधों के दरमियान में मोहर नबुव्वत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह।
तो ये उनकी निशानियां हैं। अब हजरत सलेमान ने देखा तो नहीं था, उन्होंने फौरी तौर पर खजूरों का एक टोकरा तैयार किया, उसको सही सजाया, तैयार किया, वहां आस्ता आस्ता चले, वहां जाकर पहुंचे जिधर हुजूर बैठे थे, सहाबा बैठे थे, जाकर वो खजूरों का टोकरा पेश किया, कहा जी ये सदका है। हुजूर सरवरे कायनात ने फरमाया सदका तो हम नहीं खाते, इन दोस्तों में, संगियों में, सहाबियों में तकसीम कर दो। उन्होंने कहा पहली निशानी तो पूरी हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही जगह पे पहुंचे। हजरत सलमान फारसी दूसरे दिन फिर तैयार हुए, खजूरों का एक और टोकरा सजाया और जाकर पेश किया, कहा जी ये हदिया है। सरकार ने कबूल फरमाया, खुद भी खजूरें तनावल फरमाई और साहबा को भी तकसीम की। उनका अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बात भी पूरी हो गई। अब तीसरी चीज रह गई थी नूर नबूवत की जियारत। हुजूर जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है, वहां किसी को वहां दफनाया जा रहा है, जनाजा वहां पे मौजूद है, बैठे तो सलेमान फारसी वहां वो ऐसी बारगाह है, वहां कोई ऐलान करने की, बताने की कि मैं इस काम के लिए आया हूं, ये कोई जरूरत नहीं है। वो समझते हैं कि कौन किस मकसद से आया है, कहां से आया है, किधर से आया है। फिर इस वक्त हम भी इसी अकीदत के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, इसी अकीदे के साथ ये बज़म सजाकर बैठे हैं, हुजूर की बारगाह में साइल बनकर बैठे हैं कि कर्म की नजर हो जाए। तो हज़रत सलेमान फारसी हुजूर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे कभी इधर, बोलते नहीं है, इस तरह चक्कर लगा रहे हैं। हुजूर समझ गए। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कपड़ा मुबारक, कुर्ता मुबारक उसको पीछे से ऊपर किया तो नूर नबूवत को ज़ियारत की वो चमक रही थी। और फिर ऐसा हुआ उनसे रहा न गया, वो तो जैसे वही बात है, फिर इश्क की बात है, वो फौरन लपक पड़े और उसको चूमना शुरू कर दिया, उस नूर नबूवत को चूमना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर सारी बातें हुई, मैं हुजूर फलां जगह से आया हूँ, ये मुसीबतें मुझ पे आई हैं, मैं फलां बंदे का गुलाम हूँ, हुजूर मैं जा उससे बात करूं, वो क्या लेना चाहता है। जाकर बात की, उसने मुकातब बना दिया, उन्होंने कहा जी 300 दरख्त खजूरों के मुझे दो, तैयार हो, फल लगा हुआ हो, 300 दरख्त खजूरों के और 40 गालबन 40 औकिया चांदी, ये दो तो फिर तुम आजाद होंगे। जाकर हुजूर के, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह उसने तो ये कहा है, मैं अच्छा कोई बात नहीं। आपने ऐलान किया सहाबा में कि जो जितनी इस्तेतात रखता है वो दरख्त लाए। कोई 10 दरख्त ला रहा है, कोई 5 ला रहा है, कोई 2 ला रहा है, वो सारे दरख्त इकट्ठे हो गए, 300 दरख्त इकट्ठा हो गया, पौधे छोटे छोटे। फिर हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दरख्त लगाने शुरू कर दिए। 299 दरख्त हुजूर ने अपने दस्ते अक़दस से खुद लगाए, 299 दरख्त खुद लगाए और एक दरख्त हजरत उमर को दिया कि तुम लगाओ। एक नहीं गया, जो हुजूर ने लगाए थे दूसरे दिन वो सारे तैयार हैं। मैं जनाब असफर अली साहब के गांव में गया, ढकी जो है ना वहाँ शहर, वहाँ खजूरों का बाग देखा तो मुझे हज़रत सलेमान फारसी का बाग याद आ गया। बिल्कुल वही नक्शा था, इसी तरह वो नक्शा वहां पे याद आ गया। तो अब जो हुजूर ने दरख्त लगाए थे वो सारे तैयार, फल लगे हुए, एक दरख्त उसका फल नहीं है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर उसको भी हाथ लगाया ना, जैसे ही हाथ लगाया बस हाथ की बरकत थी, वो भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया, वो भी तैयार हो गया। और फिर 40 औकिया चांदी, कहा किसी के पास कोई चांदी लाओ, कहा जाओ इससे जितनी उसकी बनती है वो ले लो। वो चांदी उसको दी, उतनी बाकी उसको भी पूरी हो गई और वो भी चांदी बाकी बच गई। ये हुजूर की बरकत थी कि कलील को कसीर बना देते हैं, कलील को कसीर बना देते हैं। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें भूख लगी है, रास्ते में बैठे हुए गए, हुजूर के साथ गए, घर में थोड़ा सा दूध था, सोचा ये दूध मेरी भूख क्या मिटाएगा, मैं तो बहुत भूखा हूं, ये तो थोड़ा सा दूध है। तो फरमाया वो रहरा पियो। वो पीते गए पीते गए पीते गए पीते गए, सैर हो गए। मैं सैर हो गया हूं, देखा तो दूध फिर उतने बाकी मौजूद है।
अल्लाह अकबर। तो वो उसको दिया, उसने आपको आजाद कर दिया। जब ये आजाद हो गए फिर हुजूर की बारगाह में पहुंचे और इतना मकाम सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, सारे साहबा देख रहे कि हुजूर ने इनको किस तरह खरीदा है, कैसे आजाद कर दिया और बड़ा मकाम। अब हर अंसार उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये, क्योंकि ये तो फारस से गए थे, उनकी ख्वाहिश ये थी कि ये हमारे साथ आ जाएं, हम अंसारियों के साथ आ जाएं। मुहाजिरीन कहने लगे जी ये हमें दे दो, ये हमारे साथ होने चाहिए। हुजूर ने फरमाया न ये तुम्हारा है न ये उनका है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हम अहले बैत का है। और फिर हुजूर ने उनको इतनी हुजूर की खिदमत की और आपने फरमाया कि एक सलेमान फारसी है और भी है, हजरत अली है, हजरत मिकदाद है। हुजूर ने फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है, जिनकी जन्नत मुश्ताक है। हर बंदा, हाजी साहब बैठे हैं, मस्जिद की सफाई इसलिए करते हैं कि मुझे जन्नत मिल जाए, नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि मुझे जन्नत मिल जाए, आज इसलिए किया मुझे जन्नत मिल जाए। लेकिन हजरत सलेमान फारसी उनमें से है कि जन्नत उनका इंतजार कर रही है, जन्नत उनकी मुश्ताक है, जन्नत उनका इंतजार कर रही है। वो हजरत सलेमान फारसी। अर्ज करने का मकसद ये है कि जिसने जो हुजूर का हो गया, जो हुजूर की बारगाह में बिक गया, बस वो फिर जमाने का बादशाह बन गया, वो जमाने का बादशाह बन गया। अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आप सब हजरात की हाजिरी को कबूल फरमाए। और जिन्होंने ये इनेकाद किया, अब्बासी साहब, असफर अली साहब और अजहर शाह साहब, अजहर शाह साहब, जितने हजरात हैं वो सामने, मुझे इनका नाम तो नहीं आता लेकिन ये दानिश भाई की तरह हैं, वो जो दानिश भाई खड़े हैं, इन सब की हाजिरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हाफिज शहजाद साहब, शैली भाई, इनकी साई को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमको दुआ मांगे, अल्लाह हमें सच्चा और सुच्चा आशिक़ रसूल बनने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ नारों वाला नहीं, सिर्फ वक्ती तौर पर धरने देने वाला नहीं, सच्चा और सुच्चा, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हलवे के, बगैर किसी छुआरों के, बगैर खजूरों के, बगैर ड्राई फ्रूट के, बगैर किसी खाने के। जो आशिक होता है उसको इन खानों की फिक्र नहीं होती। वो नहीं कहता कि हम इतने करीब बैठे थे हमें खाना नहीं भेजा गया। वो खानों के लिए नहीं, जो हज़रत सलेमान फारसी और बहुत सारी मिसालें हैं जिनको उस बारगाह का कुर्ब नसीब हो जाता है, उन्हें फिर खुद खानों की फिक्र नहीं होती बल्कि उनके लंगर चल जाते हैं। जो भी उनके पास जाता है, जिस वक्त भी जाता है, उसको कुछ न कुछ वहां से मिलता है, उसको कुछ न कुछ वहां से मिलता है। ये देख ले, कोरोना के, अब भी कोरोना, जब पहले कोरोना आया था उस वक्त हर जगह, हर होटल बंद था, यानी कोई किधर से कोई चीज नहीं मिल रही थी, लेकिन गौ से पाक का लंगर खुला था, गौ से पाक का लंगर खुला था। दूर दूर से लोग आकर यहाँ खाना खाते थे, जो मजदूर थे वो भी यहाँ आकर खाना खाते थे। किसी को ये नहीं कहा जाता था कि क्यों आयो, किधर से आयो, कैसे आयो, क्यों और कैसे की, कौन की, कोई बात ही नहीं की जाती। बस सीधी पूछी जाती है, रोटी खा दी है कि नहीं खा दी, नहीं खा दी जी, बैठ जाओ सब कुछ खा लो। ये उनका लंगर जारी और सारी है। हम सारे इसी लंगर पे पढ़ रहे हैं, इसी लंगर पे पढ़ रहे हैं। लंगर, अल्लाह ताला हमें इस लंगर के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।